Dear students, Assalamu alaikum. Here is your instructor Asma Zahir with the 11th lecture of the course Introduction to Exceptionalities. In this lecture, we will discuss about the educational considerations, services or placement options, transition into adulthood, and assistive technology that can be used for persons with learning disabilities. In our last lecture, we have discussed about definition, identification and assessment of persons with disabilities, their prevalence, causes behind the disability, and classification and characteristics attached to learning disabilities. So today's lecture is very important as we are going to discuss the educational considerations that can be adopted for learning disabilities because these children with learning disabilities have perceptual problems, perceptual difficulties. So it's very necessary to engage these students to take their maximum output. So first thing is to adapt the learning environment or what services we can provide them or what can be the placement or for options for children with learning disabilities. So the most suitable approach for this is research to, response to intervention approach that is called RTI. We have discussed RTI in our previous disabilities too, so we will discuss RTI here. The RTI approach to meeting students' needs builds on collaboration between general and special education across the intervention hierarchy or tiers of support. The intervening hierarchy used to deliver supports and services to students with learning problems shows how the needs of students can be addressed in a variety of settings within the school. At each tier, teachers work to match instruction to the learning needs of the students through systematic progress monitoring. Students receive support at the different tiers based on the intensity of their needs and movement across the tiers is determined by the students' responses to the supports offered. So RTI have three tiers tier 1, tier 2, tier 3, and tier 1 is based on universal or general educational settings. Tier 2 is denoted as collaborative general and special education approach, and tier 3 is totally special education services or individualized or remediation interventions. So, in tier 1, according to uh, needs of students with learning disabilities, Tier 1 provide universal screening and progress monitoring for all students, and effective instructions and evidence-based instructional strategies and instructional practices for all students that can be in the classroom. So, when any problem comes or teacher notice any problem in some or few students, so he or she should move to Tier 2. Tier 2 include collaboration of general and special education teachers. So Tier 2 demands the targeted assessment and more progress, frequent progress monitoring. टारगेटेड असेसमेंट हो जाती है और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग जो है वो फ्रीक्वेंट हो वीकली बेसिस पे डेली बेसिस पे जैसे आप आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट के लास्ट लेक्चर में डिस्कस हम कर चुके हैं और आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि प्रोग्रेस मॉनिटरिंग किस तरह से की जा सकती है सो फ्रीक्वेंट प्रोग्रेस मॉनिटरिंग होनी चाहिए मोर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस हों स्मॉलर ग्रुप इंस्ट्रक्शंस हों और इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ सपोर्ट सपोर्ट की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ाई जा सकती है किस तरह से अगर आप 10 to 12 सेशन बच्चे के लिए प्लान करते हैं कि बच्चा जो है 10 to 12 मंथ्स का या 10 to 12 वीक्स का सेशन लेने के बाद इस काबिल हो जाएगा कि वो इन इनपुट प्रॉब्लम्स को या प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स को या कोई भी प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर ले लर्निंग परसेप्चुअल डिफ़िकल्टी के हवाले से तो उसको कॉप अप किया जा सकता है कि वो अपनी क्लास में क्लास स्टैंडर्ड को मीट कर सकेगा अपनी बाकी क्लासमेट्स को अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम उसकी इंस्ट्रक्शंस को या उसकी जो इंटरवेंशन हम उसे प्रोवाइड कर रहे थे टायर 2 के अंदर रहते हुए उसको दोबारा से रिपीट करेंगे याद रहे कि टायर 2 जो है ये इसका पर्पस होता है कि थोड़ी देर के लिए बच्चे को उस क्लास से एक्सक्लूड किया जाता है 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए डेली ये उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है सो हम टायर 3 की तरफ कब जाते हैं जब बच्चा बार बार इंटरवेंशंस लेने के बावजूद एक प्लान जो इंटरवेंशन प्लान था वो कंप्लीट हो गया आपने रिपीट भी कर लिया अगर उससे फिर भी वो कंप्लीट हो गया मतलब 2 रेपिटेशंस के साथ
टायर 2 में आपने उसको एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस इंटेंसिटी के साथ प्रोवाइड करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चे को इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन की ज़रूरत है। क्योंकि टायर 2 में हम स्मॉलर ग्रुप्स को, एक से ज़्यादा बच्चों को जो वैसी सिमिलर नीड्स रखते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब वो बच्चा वहाँ पर मूव अप नहीं कर सकता, तो फिर हम उसे टायर 3 में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स के हवाले से। सो दिस इज़ द ट्रू पर्पस ऑफ स्पेशल एजुकेशन। Let's come to the strategies to support students with learning disabilities. According to information processing model that we have discussed in our 10th, 9th or 10th lecture, students with learning disabilities have problems of taking input, processing the information, producing output, and executive function. They cannot take the information exactly, or they may have problems in processing of information, or they may cannot produce what they have learned as an output, or they may have executive functions problem. So following slides will present some strategies that can be used to work with students with learning disabilities. So here are the strategies based on information processing model that we have discussed earlier. So we will discuss sports strategies for students with learning disability. So first we will discuss strategies for input problems. अगर input problems के साथ बच्चे हैं तो उनके लिए हम कौन कौन सी strategies use कर सकते हैं. We will discuss journal strategies. We will discuss strategies to make them read. We will discuss strategies to teach mathematics. We will discuss strategies to writing, and we will also discuss the assistive technology that can be used to improve their input capabilities or to make them receive more input or information from the environment. सो इनपुट प्रॉब्लम्स में हम जर्नल स्ट्रेटजीज को जब डिस्कस करते हैं कि हम जर्नल इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आता है कंटेंट आउटलाइंस, कि हम कंटेंट की आउटलाइंस बना देते हैं कि बच्चे को आसानी हो। आप आउटलाइन सेट कर देते हैं कि बच्चे ने ये काम जो है या ये टास्क जो है परफॉर्म करना है हर सूरत में। सो उसके लिए बच्चे के लिए भी इजी हो जाता है कि उसने आप उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं कि उसने इसके अंदर रहते हुए जो है कोई भी काम करना है। उसके बाद आ जाता है एडवांस ऑर्गेनाइज़र। हम एडवांस ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करते हैं, एविएट्स यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ राग़िब किया जा सके कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कैसे सीखेगा। सिलेबस और क्लास ओवरव्यू प्रोवाइड किया जाता है, उसकी डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस कर दिया जाता है। इन्वायरमेंट में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है। इन बच्चों के लिए ज़्यादा कलर्स, ज़्यादा इक्विपमेंट्स, ज़्यादा लर्निंग मटेरियल इनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इनकी जो प्रोसेसिंग है या इनका जो ऑडिटरी और विजुअल प्रेशर है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये इनपुट टेकअप नहीं ही कर पाते हैं, क्योंकि इनके लिए इन्फॉर्मेशन को, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जबकि हम बाकी बच्चों के लिए काम बात करते हैं कि जितनी ज़्यादा इनको परसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड की जाएंगी, उतना ही ज़्यादा इन बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ ऐसा नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ इस वजह से ऐसा नहीं है क्योंकि उनको परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है। जितनी ज़्यादा आप उन्हें परसेप्चुअल इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट होंगे। सो यूज़ मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, प्रिफरेंशियल सीटिंग हो इनकी। इसके अलावा कैरल और स्क्रीन रीडर्स आप यूज़ कर सकते हैं इनके लिए। उसके बाद रीडिंग स्ट्रेटजीज कैसे डेवलप की जा सकती हैं जब बच्चे इनपुट प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं, तो आप इसके लिए SQ3R की जो है वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सर्वे, आस्क क्वेश्चन, आस्क देम टू रीड, आस्क देम टू डिसाइड और आस्क देम टू रिव्यू व्हाट दे हैव रीड। This is the technique, most useful technique. Second is think about what you already know. आप बच्चे को जब टीच कर लेते हैं या उसको टीच करने से पहले आप बच्चे से पूछें, आप उसे कोई भी टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, आप उसे वेदर का टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं रीडिंग में, तो आप उससे पूछें कि उसको वेदर के बारे में पता क्या है। उससे आप इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद आप उसको अपना नॉलेज दें। पहले उसके प्रायर लर्निंग चेक करें कि वो इसके लिए कितना तैयार है या उसके पास कितना इंफॉर्मेशन, कितना नॉलेज इस टॉपिक के हवाले से मौजूद है। सेल्फ चेक एंड फिक्स इट फास्ट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। बच्चे को ये कैपेबिलिटी सिखानी है कि आप सेल्फ चेकिंग वो करें
और फिक्स इट फास्ट का जो रूल है वो उसे सिखाना है कि अगर वो रीड कर रहा है, रीड करने में अगर उसके साथ उससे कोई मिस्टेक होती है तो वो फ़ौरन उसको अपने आप को जज कर ले कि हाँ उसने मिस्टेक की है और उसको ठीक करने की कोशिश भी करे। ये नहीं कि बस वो पढ़ता जाए। सो बच्चे को उसकी अपनी सेल्फ चेकिंग जो है वो सिखाना ज़रूरी है। मैथ स्ट्रेटजीज में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ मैनिपुलेटिव्स, लर्न मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस जैसे गेस एंड चेक, ड्रा अ पिक्चर और सिंप्लीफाई एक्सेट्रा। Writing strategies may use process that include pre-writing organization, note cards for reference, or all your senses to set the stage for writing. Listen, look, feel. जब आप हर तरह से उसको डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को यूज़ करते हुए उसको राइटिंग के कैपेबल बनाएं कि वो किस तरह से लिखना चाहता है, आप उससे वैसे ही लिखने की ऑप्शन प्रोवाइड करें। उसके बाद असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो कि इनपुट प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए यूज़ हो सकती है, उसमें है टेक्स्ट टू वॉइस रीडर्स अवेलेबल होते हैं जो कि बच्चे को जैसे पढ़ के सुनाते हैं। जैसे ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है तो आपके पास यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जो कि आपको ये स्क्रीन रीड करके बता रहा हो, ठीक है। सो कैलकुलेटर्स यूज़ किए जा सकते हैं अगर उनको मैथमेटिकल डिफ़िकल्टी है। फ्रैंकलिन स्पेलर्स डेट स्पीक स्पेलिंग जो रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज़ होते हैं, ये यूज़ किए जा सकते हैं। एंड नोट सॉफ्टवेयर फॉर रेफरेंसिंग के लिए एंड नोट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा सकते हैं। राइटिंग का जब प्रोसेस हमने उन्हें सिखाना होता है, सो इनपुट प्रॉब्लम्स को इस तरह से कैटर किया जा सकता है। अब जब हम इनपुट प्रॉब्लम्स की फर्दर बात करते हैं तो उसमें हमारे पास विजुअल डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, ऑडिटरी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं और इसके अलावा टेक्टाइल डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, क्योंकि इनपुट तो इन्हीं तीन चीज़ों के थ्रू लेना है, ठीक है, विजुअल, ऑडिटरी और टेक्टाइल के थ्रू। सो जब विजुअल इनपुट प्रॉब्लम्स की बात आती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए पहली चीज़ यही है कि अब जनरल स्ट्रेटजीज़ के तौर पे हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर लें, हम कलर कोड इंफॉर्मेशन यूज़ कर लें, यानी कि कलर स्कीम बना लें, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट कलर्स के साथ टैग कर दें ताकि बच्चों के लिए रिकग्नाइज करना आसान हो जाए। सो ब्लैक एंड वाइट क्लियरली प्रिंटेड हैंडआउट्स हों उनके लिए, कलरफुल मटेरियल उनको इतना ना प्रोवाइड किया जाए, जो उनको अपने नोट्स देने हैं या टेक्स्ट देना है जहाँ से उन्होंने चीज़ों को याद करना है या पढ़ना है, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलरिंग पे मौजूद होना चाहिए। हाईलाइट डायरेक्शन वर्ड्स जो होते हैं ये इनको हाईलाइट करके बताएं। यूज़ अ कवर शीट, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस। आपने अगर एक बुक का पूरा पेज, जैसे हमारे पास वर्क बुक या नोट्स बुक बच्चों की होती हैं, आपने वहाँ पर बच्चों को काम करवाना है और ऊपर कोई तस्वीर बनी हुई है, नीचे कोई तस्वीर बनी हुई है, कोई और टॉपिक साथ अटैच है उसी पेज पे, या एक क्वेश्चन जो है जो आपने करंटली पढ़ाया उसका है और अगला क्वेश्चन जो है जो अभी पढ़ना है उसका है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप कवर कर दें किसी शीट के साथ ताकि बच्चा सिर्फ उसी पे फोकस रहे जो उसने पढ़ा है और उसी का आपको आंसर करें या उसी को रीड करके दिखाए, ठीक है। सो रीडिंग के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है, यूज़ कार्ड्स टू गाइड आइज अक्रॉस द पेज। कार्ड्स को यूज़ कर लें ताकि बच्चा जो है वो पेज पे मूव करते हुए उसे पता हो कि उसने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी लाइन रीड करनी है। रीड आउट लाउड सो यू हेयर द वर्ड्स, बच्चे को कहें कि वो ऊंचा पढ़े ताकि उसको अपने ही वर्ड्स सुनाई दें और वो उसको सेल्फ चेक कर सके। बुक्स ऑन टेप, टेप में रिकॉर्डेड बुक्स बच्चे को प्रोवाइड की जा सकती हैं। So third one strategy to make mathematics easy for students with learning disabilities is to use graph paper with large squares to keep numbers organized. उनको नंबर लेटर सिखाने हैं तो अब ग्राफ पेपर मिलता था वो यूज़ कर लें ताकि, क्योंकि उसमें लार्ज स्क्वेयर्स होते हैं तो बच्चा वो उन लार्ज स्क्वेयर्स के थ्रू रिकग्नाइज कर लेगा कि उसने लेटर्स किस तरह से लिखने हैं, क्योंकि इन बच्चों के साथ बॉक्स वाली जो कॉपीज़ होती हैं उनमें लिखते हुए, जो स्क्वायर वाली कॉपीज़ होती हैं उनमें लिखते हुए प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सबसे पहले आप इन्हें ग्राफ पेपर पे मैथमेटिक्स या नंबर्स लिखना सिखाए, उसके बाद आप इन्हें कॉपी पे या नोटबुक पे ले आएं। सो टर्न लाइंड पेपर साइडवेज टू क्रिएट कॉलम्स फॉर योर वर्क, ठीक है, कि पेपर के साइडों पे लाइन लगा लें ताकि उनके काम करने के लिए जो है वो कॉलम बन जाए। उसके बाद राइटिंग स्ट्रेटजीज, रिड्यूस और एलिमिनेट फार पॉइंट कॉपिंग फ्रॉम बोर्ड। अगर बोर्ड पे आपने लिखा और बच्चे को आप वहाँ से कॉपी करने के लिए कह रहे हैं तो बच्चे को आगे प्लेस करें, मतलब क्लास में आगे बिठाएं ताकि उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। असिस्टिव टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ किया जा सकता है विजुअल डिफ़िकल्टीज को रिमूव करने के लिए, लार्ज प्रिंट स्क्रीन, टेक्स्ट यूज़ किए जा सकते हैं, रिड्यूस ग्लेयर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, कलर जेल्स टू ओवरले ऑन द पेज।
So next input problems are auditory problems. Use headphones to reduce noise. In general strategies, we can use headphones to reduce noise. We can tape lectures to listen again or listen to music as you work. और हम उन्हें ये स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर दें, ये ऑप्शन प्रोवाइड कर दें कि वो जब काम कर रहे हो तो वो म्यूजिक को सुन लें. So, what can be the reading strategies adopted for auditory difficulties? Scan the written material, focus on understanding charts, graphics, and pictures. Use chapter features, headings, bold prints, summaries. वॉच द मूवी. ठीक है, जब आपने उनको रीड करवाना है तो आप उन्हें एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी कर सकते हैं. मैथमेटिक्स के लिए use pictures and visual prompts to support problem solving. Make sure all directions are written down in clear steps. 1 2 3. पहले काउंट करें, फिर इक्वल का साइन डालें, फिर उसके बाद जो काउंट किया है वो नंबर लिख दें. तो डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए 1 2 3 स्टेप्स में बच्चों के लिए. नेक्स्ट है राइटिंग स्ट्रेटजीज के लिए रिड्यूस और एलिमिनेट डिक्टेटेड राइटिंग. डिक्टेटेड राइटिंग को डिस्करेज करें और बच्चे को खुद से ही लिखने की तरफ रागिब करें. सो असिस्टिव टेक्नोलॉजी इसके लिए क्या है? ऑडिटरी डिफ़िकल्टीज को दूर करने के लिए टेप रिकॉर्डर्स, जैसे कि आप लेक्चर्स वीडियोस या जो नोट्स हैं या बच्चे की बुक्स जो हैं उसे रीडिंग रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको रिकॉर्डेड रीडिंग प्रोवाइड कर दें साथ, ताकि वो सुनकर उसकी कॉम्प्रिहेंशन भी डेवलप होती रहे या वो खुद भी पढ़ने की कोशिश करे वैसे ही एक्ट करते हुए या कॉपी करते हुए. सो टेक्टाइल डिफ़िकल्टीज जनरल स्ट्रेटजीज इनके लिए क्या है? वेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग, कट टैग्स आउट ऑफ शर्ट एंड अवॉइड रफ सीम्स. रफली जो टेक्टाइल की भी इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जो शर्ट्स के पीछे टैग लगे होते हैं, बहुत से डिसेबल्ड बच्चों को ये प्रॉब्लम करते हैं, इवन हमें भी करते हैं. सो वो टैग्स रिमूव कर दिए जाएं, कंफर्टेबल क्लोथिंग इनको दी जाए. और अवॉइड्स फूड विद अनप्लेजेंट टेक्सचर्स लाइक सीड्स, थिकनेस. बहुत से हम जैसे खाना खा रहे हो, टमाटर आ जाए तो हम बाहर निकाल देते हैं, अदरक आ जाए तो हम बाहर निकाल देते हैं. सो इन बच्चों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. सो जो अनप्लेजेंट चीज़ें आपके खाने में आ जाती हैं उनको दूर करने की कोशिश करें. रीडिंग की कोई स्ट्रेटजी टेक्टाइल डिफ़िकल्टीज के हवाले से शेयर नहीं की गई है. मैथमेटिक्स की ये है कि रोल प्ले टू एक्ट आउट वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स जो है जब आपने वो बच्चे से करवानी है तो आप रोल प्ले करवा लें, उससे उससे एक्टिविटी करवा लें कि इतने एप्पल्स इसके पास थे, इतने एप्पल्स इसके पास थे, अब आपने उनमें से कुछ ले लिए हैं तो बाकी कितने बचे. ठीक है, इस तरह से आप जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में आप उनको रोल प्ले के थ्रू जो है एक्ट करवा के रिकग्नाइज या सॉल्व करवा सकती हैं. रीडिंग के लिए सॉरी राइटिंग के लिए ट्रेस लेटर्स वर्ड ऑन सैंड पेपर और टेक्सचर सरफेस. मतलब लेटर्स आपने बच्चे को सिखाने हैं या वर्ड सिखाने हैं तो सैंड पेपर पे या टेक्सचर सरफेस पे वो लिखने की कोशिश करें. असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी टेक्टाइल डिफिकल्टीज के हवाले से ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर. उसके बाद हम आते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ या सेकंड प्रॉब्लम्स की तरफ कि व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स. प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स में हम प्रोसेसिंग की को फेस करते हैं, मेमोरी चैलेंजेस को फेस करते हैं और थिंकिंग चैलेंजेस को फेस करते हैं. So first discussed about the general strategies of processing problems or what can be done. Sit near a study buddy. ऐसे बच्चे के पास बच्चे को बिठा दें जो कि पढ़ने में ज़रा शार्प हो. ठीक है. इसके बाद ब्रेक अप लॉन्गर वर्क पीरियड्स विद शॉर्ट ब्रेक्स टू स्ट्रेच एंड मूव. क्रिएट और यूज स्टडी गाइड्स. Allow movement to help anchor learning. Use simulations and action games for learning. What can be the reading strategies for processing problem? Get the assignments ahead of time and start reading early. बच्चों को आप पहले रीडिंग करने के लिए दे दें, उनका उसका टाइम ज़रा बढ़ा दें रीडिंग का. हाईलाइट की वर्ड्स एंड आइडियाज़, की वर्ड्स और आइडियाज़ को हाईलाइट कर दें जहाँ पे बच्चे को पता हो कि उसने पॉज लेना और चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. राइट मार्जिन नोट्स इन बुक एज यू रीड और समराइज की आइडियाज़ एज यू रीड. सो बच्चे को ये स्ट्रेटजी आपने उसमें डेवलप करनी है कि वो जो जो पढ़ता जा रहा है उसको समराइज करने की भी कोशिश करे, उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें कि उसको क्या समझ आई है. सो मैथ स्ट्रेटजीज क्या यूज़ की जा सकती हैं? यूज़ रियल लाइफ एग्जांपल्स एज द बेसिस फॉर मैथ प्रॉब्लम्स. और राइटिंग स्ट्रेटजीज में टॉक योर वर्क ओवर विद समवन. बैकवर्ड मैप योर वर्क टू सी इफ द फ्लो इज लॉजिकल. आप उसको फ्लो में
आप उसको खुद से असेस करने के लिए कहें कि बच्चे ने जो लिखा है क्या वाकई उसकी कोई सेंस बन रही है नहीं या नहीं बन रही है, सो ये बैकवर्ड मैपिंग कहलाती है. So these were the strategies that can be used for processing problems. In processing problems, we also face memory challenges and thinking challenges. Let's talk about memory challenges related to processing problems. What can be done in general strategies? We can make them learning concepts versus isolated facts, chunking information, mnemonics devices such as MyDear and Sally for the order of operations, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आप उनको निमोनिक डिवाइसेस प्रोवाइड कर सकते हैं. रिहर्सल और रिपीटिशन हो सकती है. कीप लिस्ट एंड यूज फ्लैश कार्ड्स टू स्टडी. मेमोरी चैलेंजेस के साथ जब बच्चे होते हैं इनको चंक में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, फ्लैश कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं. इनका जो लर्निंग मटेरियल उन्हें कम से कम करने की कोशिश की जाती है ताकि डिफ़िकल्टी लेवल कम हो, कंटेंट भी कम हो और ये ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको मेमोराइज कर सकें. रीडिंग के लिए क्या किया जा सकता है? यूज़ हेडिंग्स टू आउटलाइन मटेरियल एंड टेक नोट्स, राइट शॉर्ट समरीज, क्रिएट अ विजुअल टू हेल्प रिमेंबर मेन आइडियाज एंड सीक्वेंसेस, रीटेल द स्टोरी एंड डिस्कस विद अदर्स. What can be done for mathematics? Use mnemonics, reduce emphasis on memorization of facts and formulas, focus on math problem solving. What can be done for writing? Use note taking and pre writing strategies, keep a to do list, insert a next steps note to remind yourself where you are going to when your writing is interrupted. Stop writing with a sentence left half finished so you can start back easily. बच्चे के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसको नोट टेकिंग सिखाएं. ठीक है, नोट टेकिंग या प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज जो है ये बच्चे को सिखाएं. उसके बाद टू डू लिस्ट उसको बना दें कि वो जैसे जैसे करता जाए तो टिक मार्क करता जाए. नेक्स्ट स्टेप्स में आप उससे ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड कर दें जहाँ पे बच्चा लिख रहा हो, उसको सिखाएं कि जब आप लिख रहे हो आपको कोई इंटरप्ट करे या भूल जाओ तो आपने वहाँ से दोबारा कैसे स्टार्ट करना है. ठीक है, कोई नोट जो है वो उसकी कॉपी में रख दें टैग सा बना के कि उसको पता हो कि हाँ उसने अब यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना है. तो मेमोरी चैलेंजेस ये बच्चे बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और इन पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है. थिंकिंग चैलेंजेस क्या हैं उसके लिए जो स्ट्रेटजीज हैं, जनरल स्ट्रेटजीज वो क्या हो सकती हैं? कॉन्सेप्ट वेब्स, वेबिंग जो है, कॉन्सेप्ट वेबिंग, या आप अपने आईटी कोर्स में मेरे ख्याल से पढ़ चुके हैं. ठीक है कि आपने कॉन्सेप्ट मैपिंग की थी. सो ये कॉन्सेप्ट वेब्स वही है. सो लर्निंग फ्रेम्स जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किए जा सकते हैं जहाँ से वो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स की वेबसाइट ये दी हुई है जहाँ पे वो डाउनलोड कर सकता है या देख सकता है लर्निंग फ्रेम्स को. मेक रिलेशनशिप अक्रॉस आइडियाज और स्टार्ट रिव्यूइंग फॉर टेस्ट्स अर्ली. Listen to class discussions and ask questions as a reading strategy. Ask yourself questions about the material. बच्चा खुद से ही क्वेश्चन पूछे, इसको इस चीज़ की तरफ इनकरेज करें. उसके बाद जो है वो मैथ स्ट्रेटजीज में क्या किया जा सकता है? थिंकिंग आउट लाउड, बच्चे को ये इनकरेज करें कि वो ज़्यादा ऊंचा बोले. डिस्कस द रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स टू अंडरस्टैंड द वाई ऑफ मैथ. मैथ के वाई को अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चे को उसके रिलेशनशिप या पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करें. उसके बाद राइटिंग के लिए क्या किया जा सकता है? डिक्टेट योर थॉट्स प्रायर टू राइटिंग सो यू विल रिमेंबर देम. बच्चे को ये इनकरेज करें कि वो अपने थॉट्स जो है वो पहले लिख ले, उसके बाद वो उसे एक फाइन राइटिंग के पीस में लिखने की कोशिश करे. पहले वो अपने आइडियाज़ को एक पेज पे वैसे ही डिक्टेट कर ले. टॉक टू योर सेल्फ अबाउट द आइडियाज़ यू वांट टू शेयर. फाइंड एडिटोरियल सपोर्ट्स. What output problems or what strategies can be used to eradicate or to end the output problems for children with learning disabilities? In general strategies, we can separate grades for content and mechanics like spelling, grammar, and punctuation, reduce assignment length, and ask for extra credit or extra time आप उस बच्चे को provide कर दें, उसको रिस्पॉन्स करने का ज़्यादा टाइम दे दें. इसके बाद रीडिंग स्ट्रेटजीज ऐसा कोई भी नहीं है. मैथ स्ट्रेटजीज में क्या किया जा सकता है कि आप उनको बच्चों को ये कह दें कि वो रिमेंबर द दैट लेस इज ऑफन मोर, रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. ठीक है कि आप बच्चों को कम से कम प्रैक्टिस करने का टाइम दें और उसको कह दें कि वो किस तरह से जो है इस टाइम को रिड्यूस कर सकता है. So writing strategies dictate responses, allow short written answers when appropriate, use note taker support. Note takers की support use की जा सकती है. Note taker सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि नोट टेकिंग
करते हैं जैसे जैसे ही इंसान बोलता रहता है तो वो नोट टेकिंग करते रहते हैं। सो बच्चे को ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी जाए जिससे वो इन चीज़ों को इन चीज़ों से जल्दी गो थ्रू हो जाए या उसका रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा अच्छा हो। यूज़ ऑल अवेलेबल टेक्नोलॉजी फॉर सपोर्ट, फॉर एग्जांपल वॉइस एक्टिवेशन सॉफ्टवेयर्स, फोटोकॉपीज, तमाम वो टेक्नोलॉजी यूज़ करें जो कि बच्चे के रिस्पॉन्स को जो है वो बेहतर बना सकती है। In output strategies, students have difficulties of speaking or writing. So, what can be done for speaking difficulties? In general strategies, make notes ahead of time of key points you want to make in a discussion and practice these. For reading, practice ahead when you need to read out loud. For mathematics, draw pictures of problems, use charts and graphs to communicate. For writing, use notes and emails to communicate versus phone calls. And for assistive technology, use software to read written material. Written material को read out करने के लिए बच्चे को सॉफ्टवेयर यूज़ करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नोट टेकिंग के भी सॉफ्टवेयर्स हैं, टेक्स्ट टू रीड के भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं जो भी मटेरियल बच्चे के सामने उसकी फ़िलहाल उस वक्त स्क्रीन पे मौजूद होता है। सो स्पीकिंग डिफ़िकल्टीज़ को इस तरह से वेरियस फॉर्म यूज़ करते हुए बच्चे को टेक्टाइल सेंस को इनकरेज करते हुए कि वो पिक्चर्स को ड्रा कर ले, चार्ट्स बना के दिखा दे या जो वो बताना चाह रहा है वो ईमेल कर दे, फ़ोन कॉल के ज़रिए बता दे, नोट्स लिख के बता दे कि उसको क्या प्रॉब्लम है या वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको एक से ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ऑप्शंस प्रोवाइड की जाएँ। राइटिंग डिफ़िकल्टीज में यूज़ प्री राइटिंग टेक्निक्स, इसके बाद यूज़ मैथ टॉक्स टू शेयर व्हाट इज़ लर्नड फॉर राइटिंग। नो पेनल्टी फॉर पुअर हैंड राइटिंग के लिए आप उसे कोई पेनल्टी ना दे। उसको ड्राफ्टिंग प्रोसेस जो है वो जब कर रहा हो तो बच्चे को फीडबैक एज अर्ली एज पॉसिबल प्रोवाइड कर लें। लर्न ऐसे राइटिंग टेक्निक्स एंड यूज़ देम। एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ के लिए क्या यूज़ की जा सकती है राइटिंग डिफ़िकल्टीज़ को कवर रिमूव करने के लिए? इसमें स्पेलिंग चेकर्स होते हैं, ग्रामर चेक होता है जो कि सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं। प्री राइटिंग सॉफ्टवेयर टूल्स भी मौजूद हैं और इसके अलावा वॉइस एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद है जो कि आउटपुट प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग प्रॉब्लम्स, एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्रॉब्लम्स के लिए हम जनरल स्ट्रेटजीज़ में आप असाइनमेंट बुक्स यूज़ कर सकते हैं इन बच्चों के लिए और कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेक लिस्ट एंड चेक थिंग्स ऑफ, चेकलिस्ट एक बना सकते हैं कि कौन कौन सा काम बच्चे ने कर लिया वो उसको खुद ही जो है टिक क्रॉस करता रहे, टिक मार्क करता रहे। मटेरियल इनका बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे प्लेस होनी चाहिए। सो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के प्रॉब्लम्स जो हैं ये जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं और जनरल इनका जो इन्वायरमेंट है वो इनके लिए हैंडी होना चाहिए, इनके लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए जो इनका जनरल इन्वायरमेंट है, ताकि इनको एग्जीक्यूटिव फंक्शन की प्रॉब्लम्स ना हो। रीडिंग स्ट्रेटजीज में क्या किया जा सकता है? फोकस ऑन टॉपिक सेंटेंस कंक्लूजन्स एंड समरीज। आप बच्चे को पूरा टॉपिक पढ़ाने के बजाय ये कर लें कि उसको टॉपिक याद करवाएं, सेंटेंसेस में जो मेन सेंटेंसेस हैं वो कंक्लूजन्स और समरीज की तरफ लेकर जाएं। Use cliff notes to help you summarize learning. Understand that different kind of written material need different kind of reading and adjust accordingly. बच्चे को ये सिखाना है कि मुख्तलिफ तरह का रीडिंग मटेरियल जो है वो मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। उसमें किस तरह से आपने एडजस्ट करना है। इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है या मैथ की प्रॉब्लम्स हैं, उसको किस तरह से सॉल्व करना है। मैथ स्ट्रेटजीज के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है? फोकस ऑन वन स्टेप और डायरेक्शन एट अ टाइम। Check your work to verify accuracy. Work slowly and try to be neat. Use reading strategies for word problems, etc. etc. So, writing strategies में think about who your audience is. Audience कौन है उस लिहाज से लिखना है मैसेज, अपना उस लिहाज से मैसेज कन्वे करना है, अपने की पॉइंट्स की तरफ फोकस करना है और पीयर एडिटर फीडबैक जो है वो लाजमी हो। पीयर एडिटर फीडबैक में ये होता है कि बच्चा जो भी लिख रहा है उसके साथ पीयर जो है वो उसको बता रहा है, उसका फ्रेंड या उसका फेलो जो है वो उसको बता रहा है कि इसने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। पीयर एडिटर फीडबैक जो है वो हेल्पफुल रहता है बच्चे की रिटन मटेरियल को इम्प्रूव करने के लिए। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के लिए डे प्लानर्स हैं एंड पाम पायलट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर्स हैं और शेड्यूल्स हैं जो कि बच्चे को उसकी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। So these were the different strategies that can be used for
students with learning disabilities using the information processing model. Here are two journal approaches to instructions that can be used. सो जर्नल जो अप्रोचेज़ हैं उसमें क्या कौन कौन सी अप्रोचेज़ है, एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं और दूसरी जो है वो कॉग्निटिव ट्रेनिंग है। इस तरह की अप्रोचेज़ जो हैं बच्चे के लिए यूज़ की जा सकती हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। इन बच्चों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा मटेरियल ओवरलैप कर रहा होगा, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़्यादा होंगी, जितना ज़्यादा आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हुए पढ़ाएंगे, इन बच्चों को समझ नहीं आएगी। डायरेक्ट टू द पॉइंट इंस्ट्रक्शंस, आपने बच्चे से कहना है कि वो पेंसिल लेकर आए आपके पास, ठीक है। आप उसे कह रहे हैं कि फ़ौरन अपनी सीट पे जाओ, बैग खोलो, उसमें से पेंसिल निकालो और मेरे पास लेकर आओ। सो ये आपने 3-4 कमांड्स जो हैं बच्चे को एक ही टाइम में प्रोवाइड कर दी हैं, जबकि आप उसे सिंगल कमांड भी दे सकते हैं, जैसे पेंसिल लेकर आओ। ये एक सिंपल कमांड है। तो आपने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस का पर्पस सिंपल कमांड, सिंपल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना है, विदाउट यूजिंग एनी स्ट्रेटजी, विदाउट यूजिंग एनी टीचिंग मेथड्स और विदाउट यूजिंग एनी एड्स। जैसे कि हमारा यूनिवर्सिटी में हम आपको जो टीच करते हैं ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड है। सो सेकंड जो चीज़ है वो पीयर ट्यूटरिंग है। पीयर ट्यूटरिंग में दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, पहले क्लास वाइड पीयर ट्यूटरिंग है और पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रेटजीज है। क्लास वाइड पीयर ट्यूटरिंग में टीचर्स जो हैं वो पेयर बना देते हैं बच्चों के पीयर जो है वो अपने साथ वाले को लीड कर रहा होता है, देख रहा होता है। पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रेटजीज में भी यही है कि जो ज़्यादा लाइक बच्चा होता है उसको लुक आफ्टर करने को कह दिया जाता है, ऐसा बच्चा जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ है। सो वो उसको फीडबैक, करंट फीडबैक इमीडिएटली प्रोवाइड करता रहता है। कॉग्निटिव ट्रेनिंग इनके लिए बहुत नेसेसरी है, जिसमें सेल्फ इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, सेल्फ चेक आ जाता है, सेल्फ मॉनिटरिंग आ जाती है, स्कैफोल्डेड इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं और रेसिप्रोकल टीचिंग आ जाती है, जो कि इन बच्चों को ये सब चीज़ें आप स्कैफोल्डेड इंस्ट्रक्शन और रेसिप्रोकल टीचिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं जब हमने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। सो इन बच्चों को भी कॉग्निटिव ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। Assessment adaptations for learning disabilities. Assessment is very necessary for learning disabilities. ये assessment वो वाली नहीं है जो कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। ये assessment है जब क्लास का काम करने के बाद क्या किया जा सकता है इन बच्चों के साथ। ये स्ट्रेटजीज हैं कि बच्चे के साथ आपने जब काम करना है, उसने आपको मटेरियल प्रोड्यूस करके दिखाया, कोई आउटपुट दिया, आपने असेस किस तरह से करना है उसको। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज कैन बी टेस्ट टेकिंग। टेस्ट टेकिंग जो है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है, एंग्जाइटी क्रिएट करता है कि ये अपना आउटपुट दे ही नहीं पाते हैं टेस्टिंग की सिचुएशन में। जाहिर है आप लोगों के एग्ज़ाम हो, पेपर हो, टेस्ट हो, हम लोगों को भी एंग्जाइटी होती है, हम लोगों को भी डिप्रेशन होता है, लेकिन इन बच्चों के साथ जाहिर है वो पहले ही परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के साथ हैं, तो टेस्ट टेकिंग इनके लिए काफ़ी चैलेंज हो जाता है। एजुकेशनल अडेप्टेशन शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी while maximize the student's ability to be successful. Adaptations that help the student become more autonomous and independent are optimal. So here are 10 things that can be done to help students become more successful during assessment. First is prompt students to read directions and questions carefully and to ask if they do not understand. Second is offer extended time on test. Use alternative assessments like projects, films, photo essays and so forth. अगर वो नोट टेकिंग नहीं करके या लिख कर आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप उनको प्रोजेक्ट्स दे दें, कोई फिल्म मेकिंग दे दें, फोटो एसेस बनाने को दे दें। और इस तरह की बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव असेसमेंट हैं जो कि बच्चे से टेस्ट लेने के अलावा भी करवाई जा सकती हैं। अलाउ शॉर्ट रिटन आंसर्स व्हेन अप्रोप्रिएट, गिव ऑरल रिस्पॉन्स टेस्ट, हम उनसे ऑरल टेस्ट भी ले सकते हैं। Remind students to look over the whole test before starting and to focus first on the items that score the highest number of points. जो ज़्यादा नंबरिंग दे रहे हैं आप उनको पहले लिख लें, उनका आंसर पहले लिख लें, जो काम है उनको बाद में कर लें। सो बच्चे को टेस्ट टेकिंग के लिए प्रिपेयर करवाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ओरिएंटेशन देना टेस्ट की ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफर अ टिप फॉर टेस्ट टेकिंग सेमिनार फॉर योर स्टूडेंट्स, ये भी ओरिएंटेशन की ही टाइप है। रीड द टेस्ट टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को टेस्ट पढ़ के बताएं कि क्या क्या क्वेश्चंस लिखे हुए हैं।
ऑफर अ डिस्ट्रक्शन फ्री environment for टेस्ट टेकिंग। हम डिस्ट्रक्शन फ्री environment को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो अलाउ स्टूडेंट्स टू डिजाइन कवर शीट्स विद की प्रॉम्प्ट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट यू अप्रूव फॉर यूज ड्यूरिंग द टेस्ट। जो टेस्ट में आप उन बच्चों को कवर शीट्स प्रोवाइड कर दें। कवर शीट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होती हैं, ताकि बच्चे जो है वो, जैसे 3 क्वेश्चन आपने एक पेपर पे लिखे हुए हैं बच्चे के लिए, यहाँ 2 क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, तो बच्चा उसमें कंफ्यूज हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आप एक क्वेश्चन को कवर शीट से कवर कर दें, तब तक बच्चा पहला क्वेश्चन सॉल्व कर ले। जब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो पहले वाले को कवर कर दें, और दूसरा वाला जो है उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए। कवर शीट्स आप उसको खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दीज were the assessment adaptations that can be used for learning disabilities. What factors are included for successful transition into adulthood? Extraordinary perseverance, setting goals, acceptance of weakness combined with building on strengths, strong network of social support, intensive and long-term educational intervention, high quality on the job or post-secondary vocational training, supportive work environment can be provided to individuals with learning disabilities, or taking control of one's life. You can teach them to self monitoring and self control. So, this was the lecture 11 of the course Introduction to Exceptionalities. Today, we have discussed educational considerations and what strategies can be used for individuals with learning disabilities. We have also discussed placement options, and we have discussed the transition into adulthood and technology that can be used. Furthermore, we have also discussed the assessment considerations for children with learning disabilities. So, this was from my side of today's lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.